Good morning, student. Myself Ashok Kumar. Today, I am come up with a new video of your next class. In this section of video, we will learn about the next kind of a verb. In last our video, we have learned about the basics of tense, and we have started our class with subject, verb and complement. In that video we have learned about the subject, definition of subject, type of subject, and then after we have learned about the verb, the definition of verb, and what is the verb is actually. In last our video we have left some topic about the verb, that the kind of verbs we have started, the three types of verbs. First is the basis of utility. Verb is differentiated by three parts. First is the basis of utility. Second is the basis of objective, and third is basis of strength. In our last video we have learned about the first and second part of verb. The first part, basis of utility, is also divided into two parts. First is main verb, second is helping verb. Main verb is the verb that is have same meaning as well as in sentence and individually. And helping verbs are those verbs, those are used to define the time, the form of a verb. In second part of verb, that is basis of object, we have learned about the transitive and intransitive verbs. In that part, the verbs are also divided into two parts, that is a transitive. First is transitive, second is intransitive. The transitive verbs have an object behind that, and intransitive verbs are not required any kind of object. That is the last our lesson. But in today's lesson we will learn about the third part of verb, that is basis of strength. सो गाइज, पिछली क्लास में हमने जो कुछ पढ़ा था वो हमने एक बार रिमाइंड हम कर रहे हैं कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, वर्ब क्या होती है, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं. तो वर्ब के प्रकार हमने देखे थे कि वर्ब तीन प्रकार की होती है. वर्ब को हमने तीन भागों में बांटा था. काइंड्स ऑफ वर्ब्स आर, वी हैव डिफरेंशिएट वर्ब्स इन थ्री टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज बेसिस ऑफ यूटिलिटी. बेसिस ऑफ यूटिलिटी में हमने वर्ब को दो भागों में बांटा था. फर्स्ट थी मेन वर्ब, सेकंड थी हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट हैव सेम मीनिंग एज वेल एज इंडिविजुअल और यूज इन सेंटेंस. एंड second type of verbs are helping verb that define the tense of the particular main verb. तो हमने basis of utility में and second part of basis of objective. basis of objective में हमने देखा था the type of different verbs, that is transitive or intransitive. Transitive verbs are which verbs that have followed by a object, and if we are not using an object, then the meaning of particular verb is not clear. Intransitive verbs are that verbs that do not require any kind of object. Next is strong, basis of strength, and in this section
we will define the different type of verbs. तो गाइस, हमने पहले दिन की हमारी जो क्लास थी उस क्लास में हमने टेंस का प्रीफेस पढ़ा था, साथ में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे। साथ में हमने वर्ब्स पढ़ी थी कि वर्ब कहा किसे जाता है, एक्शन को वर्ब कहा जाता है, और वर्ब्स को हमने अलग अलग तरीके से बांटा था। पहला था हमारा बेसिस ऑफ यूटिलिटी, यानी उपयोगिता के आधार पे हमने इन्हें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में बांटा था। मेन वर्ब वो वर्ब होती हैं जो कि क्या करते हैं। मेन वर्ब वो वर्ब होती हैं जो या तो अकेले काम में ले ली जाए या फिर सेंटेंस में इनका मीनिंग नहीं बदलता। और हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जो कि मेन वर्ब के काल को बताने का कार्य करती है, यानी कि ये एक्शन कब हुई थी। दूसरा हमारे पास जो टॉपिक था वो था वर्ब का ही, कि वर्ब को कर्म के आधार पे हमने दो अलग अलग भागों में बांटा था। पहला था ट्रांजिटिव यानी सकर्मक, दूसरा था इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक। सकर्मक वर्ब वो वर्ब हुआ करती हैं जो कि बिना ऑब्जेक्ट के अपने मीनिंग को डिफाइन नहीं करती, यानी इनके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती ही है। यदि ऑब्जेक्ट हम काम में नहीं लेंगे तो ये वर्ब हमारी अपना मीनिंग नहीं बता पाएगी। और अकर्मक वर्ब वो होती हैं जिनमें कि हम यदि ऑब्जेक्ट काम में भी ले लें या नहीं भी लें तो भी इनका मीनिंग वही होता है। अब आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि वर्ब को उनकी प्रबलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, वर्ब को इनकी प्रबलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ वर्ब, verbs are divided into two parts. First is strong verb and second is weak verb. Strong verbs are which verbs that have different spelling in different tense. स्ट्रॉन्ग वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनकी की काल के अनुसार इनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखना चाहें तो हम गो को ले लीजिए। देखिए, गो की तीनों काल में अलग अलग फॉर्म है। जैसे गो है, गो की प्रेजेंट में फॉर्म है गो, एंड पास्ट में फॉर्म है इसकी वो क्या है, वेंट, एंड पास्ट पार्टिसिपल यानी परफेक्ट में इसकी फॉर्म है वो है गॉन। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो वर्ब की तीनों फॉर्म अलग अलग है, हमें इन्हें अलग अलग तरीके से याद करना होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सी की हमारे पास तीनों फॉर्म में अलग है, सी, सा एंड सीन। सेकंड हमारे पास जो स्ट्रेंथ के आधार पे हम वर्ब को बांटेंगे वो वर्ब होगी वीक वर्ब। वीक वर्ब कहा किसे जाता है। वीक वर्ब वो वर्ब होती हैं जो कि तीनों ही काल में इनके या तो स्पेलिंग एक जैसे होते हैं या फिर इनमें हम एक सुफिक्स जोड़ देते हैं पीछे की तरफ, और वो होता है ईडी। हम कौन सा सुफिक्स जोड़ते हैं, हम ई और डी, ईडी सुफिक्स जोड़ के हम इनको तीनों काल के अनुसार बदल देते हैं। तो ये वर्ब, इनका मेन जो रूट वर्ड है वो सेम ही रहता है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए इन्हें वीक वर्ब कहा जाता है। सो वीक वर्ब में हम ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे फर्स्ट इज कट। कट की तीनों में ही देखिए कट, कट और कट होती है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम अपीयर वर्ड को हम लेते हैं तो अपीयर वर्ड में एक चीज़ देखिए आप कि हमने यहाँ पे एक सुफिक्स यूज़ किया है वो है ईडी, और अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड हमारे पास इनकी वर्ब हो जाती है। अब बात करते हैं हम टाइम और टेंस की। देखिए, टाइम और टेंस, मोस्टली विद्यार्थी टाइम और टेंस को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग होती है। टेंस होता क्या है, इससे पहले हम देख लेते हैं कि टाइम होता क्या है। ओके,
देखिए टाइम को हम सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष आदि रूपों में बांटते हैं. So we can say the time is divided into second, minute, hour, day, week, month, year, century, etc. etc. And when the time is passed, slowly time is passed, then collectively we call them tense. यानी कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और वो काल का रूप धारण कर लेता है. तो समय काल की एक बहुत छोटी इकाई है. काल और समय एक नहीं है. बात करते हैं टेंस की. सो टेंस क्या होते हैं? टेंस वर्ब का वह रूप होता है जो वर्ब की कार्य विधि या वर्ब की कार्य की अवस्था के समय का बोध करवाता है. टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिफाइन द कंडीशन, वर्क कंडीशन ऑफ अ वर्ब. सरल भाषा में यदि हम कहें तो टेंस एक निश्चित वाक्य रचना का आधार या पृष्ठभूमि है. Tense is the basic or the fundamental of writing a sentence. Tense क्या है? एक सेंटेंस लिखने का फंडामेंटल है, एक बेसिक उसकी आधार है, उसका आधार है. यदि हम इसे सही ढंग से समझना चाहें तो एक बार हम इन उदाहरणों को देख लेते हैं. देखिए उदाहरण के तौर पे आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, इन्हें आप ज़रा गौर से देखिएगा. यहाँ पे आपको टेंस और टाइम दोनों में ही फ़र्क नज़र आ जाएगा. देखिए टेंस कहा किसे जाता है और टाइम कहा किसे जाता है. As we know that a time is a physical quantity to measure. टाइम एक भौतिक राशि है जिससे कि हम समय की गणना करते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए पहले सेंटेंस में द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड आवर सिटी लास्ट वीक. प्राइम मिनिस्टर पिछले सप्ताह हमारे शहर घूमने आए थे. तो यहाँ पे जो लास्ट वीक है वो लास्ट वीक तो हमें किसका बोध करा रहा है? वो हमें टाइम का बोध करवा रहा है. वो तो हमें टाइम का बोध करवा रहा है. लेकिन जो विजिटेड है, विजिटेड हमें उस समय के बारे में बता रहा है कि वो समय कब का है. तो यहाँ पे वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ ईडी हमने जोड़ा है और इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है. तो ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो हमें बता रही है कि ये घटना भूतकाल की है. ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे देखिए द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स आवर सिटी टुमारो, यानी कल प्राइम मिनिस्टर हमारे शहर घूमने आएंगे. तो यहाँ पे जो कल दिया गया है, टुमारो जो दिया गया है, वो एक फ्यूचर एक्शन है, यानी फ्यूचर के समय के बारे में है. तो यहाँ पे जो विजिट्स है, देखिए टेंस के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेंस, इफ़ एनी एक्शन विल परफॉर्म इन फ्यूचर एंड डिसाइडेड इन प्रेजेंट इन पास्ट दैट इट इज़ काउंटेड इन प्रेजेंट सिंपल. यानी कोई भी एक्शन जो कि भविष्य में घटनी है लेकिन उसके बारे में भूतकाल को ही तय हो गया है तो वो प्रेजेंट सिंपल में ही काउंट होगी. तो यहाँ पे हमने वर्ब में ऐसे एस लगाए हैं.
ये वर्ब में ऐसे एस लगाना हमें उस काल के बारे में बताता है, जैसा कि आप पिछली क्लास में पढ़ते हुए आए हो कि प्रेजेंट सिंपल में हम वर्ब में ऐसे एस लगाते हैं, पास्ट सिंपल में हम वर्ब में ईडी लगा देते हैं या वर्ब की सेकंड फॉर्म हम काम में लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे अगला सेंटेंस हमारा है, यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर इज़ विजिटिंग आवर सिटी टुमारो। तो यहाँ पे देखिए इज जो आया है साथ में वर्ब में आईएनजी आया है। आईएनजी फॉर्म हमें बताती है कि ये हमारा सेंटेंस कंटिन्यूअस का है। साथ में जो टुमारो है वो हमें बता रहा है कि ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है। ठीक उसी प्रकार से जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ जितने भी होते हैं, जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है, किसी की आदत होती है, वो सब हम प्रेजेंट सिंपल में काउंट करते हैं और वहाँ पे वर्ब में ऐसे यस लगाते हैं। सो यहाँ पे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस हमें क्या बता रहा है, हमें सूर्य उदय होने यानी सूर्य की जो प्रकृति है उसकी जानकारी दे रहा है। लेकिन ये हमारा काल कौन सा हो जाता है, प्रेजेंट सिंपल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, ये एक इमीडिएट प्रेजेंट है कि आपके सामने कोई बैठा है, उसने आपको आदेश दिया है आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमें इमीडिएट प्रेजेंट यानी किसी के द्वारा दिए गए तुरंत आदेश को हमें किस में काउंट करना होता है, प्रेजेंट सिंपल में ही हम उसे काउंट कर रहे हैं। सो गाइज, ये चीज़ आपको समझ में आई कि टेंस और टाइम में क्या फ़र्क होता है। देखिए ये चीज़ हमें जाननी क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ हमें इसलिए ज़रूरी है, वी नीड टू क्लेरिफाई दिस सेक्शन बिकॉज if we want to describe or to if we want to convey our message to others with clear and loud, then we require the deep knowledge of tense as well as verbs। हमें verbs और tense का पूरा गहरा ज्ञान होना चाहिए, so we can convey our message clearly to them, ताकि हम उन्हें हमारा मैसेज पूर्णतया समझा पाएं। आगे देखिए वर्ब को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। वर्ब की 3 भागों में जो बांटने की प्रकृति है वही डिसाइड करती है कि हमें इन्हें कब और कहाँ यूज करना होता है और किस प्रकार यूज करना होता है। जैसे प्रेजेंट फॉर्म जो वर्ब की होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म को हम कहते हैं बेस फॉर्म, और यही हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, जिसे हम इस प्रकार लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो वर्ब की होती है उसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, और सेकंड फॉर्म को हम हमारे मोस्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म इस प्रकार से लिखते हैं। थर्ड फॉर्म जो वर्ब की होती है उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और थर्ड फॉर्म को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए थर्ड फॉर्म वर्ब की वो फॉर्म होती है जो कि हम परफेक्ट में या फिर एक्टिव से पैसिव बनाने वक्त काम में लेते हैं। ये हमें इसलिए वर्बों को अलग अलग रूप में हमें याद करना या हमें तैयार करना ज़रूरी होता है, ताकि वी डोंट मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स इन आवर सेंटेंसेस एंड वी विल क्लियरली कन्वे आवर मैसेज टू अदर्स। We will clearly state our sentence। आगे हम देखते हैं कि वर्बों को कितने भागों में बांटा गया है, किस प्रकार की वर्ब्स हैं, और इन वर्बों के अलग अलग प्रकार के बारे में हम जानेंगे। देखिए याद रखने के तौर पे वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो रेगुलर वर्ब, दूसरी इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो वर्ब हो गई जिन्हें हम क्या कहते हैं, हम वीक वर्ब कहते हैं, जिनमें हम ईडी काम में ले लेते हैं, और इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब हो गई जिन्हें हम इनके तीनों स्वरूप हमें अलग अलग तरीके से याद करने होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पे देखिए अराइज रोज राइजन। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो वर्ब दी गई है प्रेजेंट में
राइज है, पास्ट में रोज है, पास्ट पार्टिसिपल में राइजन है। तो ये जो वर्ब है वो एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है क्योंकि यहाँ पे तीनों ही स्पेलिंग इसकी अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार से बियर बोर्न बोर्न जो वर्ब है वो भी देखिए तीनों ही अलग अलग है। तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग अलग है, इसीलिए इन्हें स्ट्रॉन्ग वर्ब कहा जाता है और इनका यूज करना भी अलग अलग ही होता है। ऐसा नहीं है कि हम इन्हें, जैसे बोर्न है तो बोर्न को हम प्रेजेंट सिंपल में यूज कर ले, नहीं, बोर्न इसके जहाँ यूज होना है वहीं यूज होगा। ये पूरी लिस्ट हमारी किताब में दी गई है। इस पूरी लिस्ट को आपको अच्छी तरीके से याद करना है, अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि हमारी आगे की क्लासों में भी आगे के हर चैप्टर में इन्हीं का उपयोग होगा। साथ में हमारे पेपर में भी वर्ब से जुड़े हुए ही हमारे ग्रामर के सारे सब क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो उन्हें करेक्ट करने के लिए हमें इन सबको अच्छे से तैयार करने होंगे, क्योंकि ये 15 नंबर से जो 15 नंबर्स आर ओनली डिपेंडेड ऑन वर्ब्स एंड यूज ऑफ वर्ब। तो इन्हें अच्छी तरीके से आपको तैयार करने होंगे। आगे देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस और टाइम में जो डिफरेंस है वो तो आपने जान ही लिया कि टेंस में क्या डिफरेंस है और टाइम में क्या डिफरेंस है। टेंस मोस्टली इंग्लिश में 2 ही प्रकार के होते हैं। There are 2 types of tense in English language. First is present tense and second is past tense. Future tense is not counted in the tenses and is not considered as a tense because future is an action. यानी इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही टेंस काउंट किए जाते हैं, एक तो पास्ट और एक प्रेजेंट। फ्यूचर को सिर्फ एक एक्शन के तौर पे लिया जाता है जो कि भविष्य की एक्शन को बताता है। इन्हीं टेंसों को फिर आगे चल के अलग अलग 4 भागों में बांटा गया है: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सभी टेंसों को हम डीपली 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप विथ एग्जाम्पल्स विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस हम सभी को पढ़ेंगे। सो इनके लिए आपको पहले से तैयार होगा। कल आगे की हमारी जो क्लास होगी उस क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो इसके बेसिक्स आपको अच्छी तरीके से आपको एक बार पढ़ने होंगे पहले से, ताकि जब पढ़ाया जाए तो आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक उसी प्रकार से हम इनके एग्जाम्पल करते चले जाएंगे साथ साथ। तो इन टेंसों में हमें कोई दिक्कत ना हो, इन्हें समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हमारे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सभी के सभी हमारे टेंसों पे ही डिपेंड करते हैं। और टेंस हमारे सभी डिपेंड करते हैं, वो करते हैं किस पे? वर्ब्स पे। तो हमें वर्ब्स की जो चार्ट है, जो सारणी दी गई है, जो टेबल है, वो हमें पूरी अच्छी तरीके से तैयार करनी है, ताकि हमें टेंस में दिक्कत ना आए। और टेंस हमें दिक्कत नहीं आएगी तो हमें आगे के किसी भी ग्रामेटिकल पार्ट में हमें दिक्कत नहीं आएगी। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, इसे एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने सबसे पहले तो हमारी पुरानी क्लास को रिवाइंड किया था। फिर उसके बाद में हमने जो हमारा पिछली क्लास में जो हमारा टॉपिक छूट गया था उस टॉपिक को हमने कवर अप किया, जो कि था कि वर्ब को हमने उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर बांटा था, और वो थे स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब। फिर उसके बाद में हमने देखा कि टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस है विथ एग्जाम्पल। फिर हमने देखा कि वर्ब की फॉर्म में किस टेंस के लिए कौन सी डिसाइडेड है और उन्हें किस प्रकार लिखते हैं। आगे हमने देखा क्या आगे हमारे पास जो आई थी वो आई थी वर्ब की लिस्ट आई थी, उस लिस्ट को हमें तैयार करना होगा पूरी की पूरी। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो गुड बाय गाइज, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, बी केयरफुल।